Chandan, welcome and thanks a lot for your time you spared today for this interaction, and congratulations for your selection in prestigious ISRO. Yeah, thank you, sir. Thank you very much, sir. Okay, Chandan, as you know, getting into prestigious research organizations like ISRO is a difficult task and Okay. a long journey always. So I will be recording your this entire journey. I know it is very, very inspiring. So Chandan, I want first you to give your very brief introduction in which please tell us from where you are, when did you graduate, from which college you graduated, and then when did you start your preparation of ISRO, and then we proceed forward. Okay, sir. Sir, as you know, sir, my name is Chandan Kumar Yadav. And sir, I'm from basically, sir, I'm from Varanasi. And sir, I did my schooling at Government Queen's Inter College, Varanasi. And then after, sir, I have completed my BTech in Mechanical Engineering from Gurukul Kangdi Vishwavidyalaya, Haridwar, which is CFTI. And then, sir, my journey will start from there, sir. I will start preparing for the competitive examination. And I got selected in IIT Delhi in the ITMEC department in the CART, which is also known as the Center for Automotive Research and Travelology. And sir, in between, sir, I also got one opportunity from the Indian Railway as well. So I got selected there. And sir, because of COVID and all, sir, I joined Indian Railway there as a junior engineer there. And I give the ISRO examination 2020 at 12th of January 2020 only. So sir, I got selected there. And then sir, I start preparing for the interview and all. And finally, sir, I got selected in ISRO. Okay. Okay. So Chandan, let me put it now. Okay, let me put it in a different perspective. Chandan, so when did you graduate, Chandan? Okay, so Chandan, let me put it in this perspective once again. So when did you graduate from Gurukul Kangdi? Sir, in 2018, sir. 18 में. और आपने डिसाइड कब किया था ये सारा प्रिपरेशन वगैरह इसरो में जाना है एंड ऑल? Sir, ISRO is always, sir, one of my dreams from since my childhood, sir. I love to passionate about rockets and all. आपकी ब्रांच की इंजीनियरिंग ब्रांच क्या है चंदन? Sir, it's a mechanical engineer, sir. मैकेनिकल. तो आप अपना थोड़ा गेट वाली जर्नी डिस्कस करेंगे हमारे साथ कि गेट में आपने कब कब गेट एग्जाम लिखा और क्या क्या स्कोर था आपका, क्या रैंक था? सर गेट 2080 लिखा तो उतना अच्छा नहीं हुआ सर वो, बट क्या क्या रहा था? I qualify gate, sir. I get almost 60 marks in gate in first attempt, and sir, it is quite good. So that, sir, I will further push myself and go start preparing for the gate again. And I write gate to 2019, and I get a gate score of 702. And from this score, sir, I joined ITMEC department at IIT Delhi. Okay, ITMEC Industrial Travelology Department IIT Delhi आपने join कर लिया? Yes, sir. It is an interdisciplinary program, and it is very good, sir. That's good. और फिर उसके बाद आपने वो छोड़ दिया लेकिन, right? Yes, sir. So you have written 20 also, gate 2020 and gate 2021? Yes, sir. I write gate 2020 and score is my further increase, and this time, sir, I scored 735. 735. और 2021? Okay. I didn't write 2021. 2021 आपने नहीं लिखा. अच्छा, तो आपका उसके बाद आपने ITMEC कब छोड़ा? When did you get in railways? Sir, after completing my first semester and almost second semester will almost end, and then, sir, I leave the MTech and join, sir, this Indian Railway. Because, sir, COVID situations are there. That's why, sir, I decided to go for that. Because as a mechanical engineer, sir, we know that. So presently you are in railways, right? Reduced. Yes, sir. Right now I am in railways. Okay, so you are working in railways, and your joining has not come in ISRO. No, sir, not yet. तो अभी मेरे को बताओ चंदन, ये प्रिपरेशन का बताओ. There are so many students who dream and desire to be in ISRO like you from colleges all over India. So but everybody does not fulfill his desire or dream. ISRO एग्जाम के बारे में बताओ. मेरे को ये सेफ एग्जाम लगता है बिकॉज काफी एज भी है इसमें, काफी एज तक अलाउ करते हैं इसमें. और कुछ इस एग्जाम के बारे में बताओ. यू हैव रिटन मेनी एग्जाम्स नाउ, लाइक रेलवेज का लिखा आपने, गेट लिखा, ये ISRO लिखा. Tell me something about ISRO exam. Sir, in ISRO exam, sir, actually first step is a screening test. So they ask about like 80 questions. We have to solve in 90 minutes only. So keep in your mind, it is an offline paper. So we have to fill the bubble as well. So their time management is very important in ISRO examination as compared to the other examination. If I compare, sir, GATE examination, where we get around 50 technical questions and almost like 3 hours will be there.
total 65 questions, but the time is 3 hours. But here we get 80 questions and the time is 90 minutes only. So the chances of mistakes is very high in ISRO when you attempt the paper. So keep practicing well so that the chances of mistakes will be reduced. And this is the one factor that most of the students will not select it, because sir, in a hurry we will actually, sir, what we did that option is so ऑप्शन सर ऐसे रखते हैं जैसे कि मतलब वो गलत करवा ही देते हैं ऑप्शन से क्वेश्चंस। अच्छा, तो उसको तो कैसे उसके फिर रोका जा सकता है ऑप्शंस की गलती को? इसके लिए सर जैसे फुल लेंथ प्रीवियस ईयर पेपर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे, आईएसआरओ की वेबसाइट पे भी है, और बहुत सारे रिसोर्सेज भी ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, वहां से सर उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरा फुल पेपर हम, सो दैट सर द मिस्टेक्स विल बी मिनिमाइज। तो ये सारा मतलब 1.5 घंटे का पेपर है, 90 मिनट्स का पेपर है, एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है चंदन? यस सर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप मेरे को बताइए, आपका कितना पेपर अटेम्प्ट किया था? 90 मिनट्स में आपने 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन लगाए थे? सर मेरे ऑलमोस्ट मैंने 60 65 क्वेश्चन सर अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, 60 to 65 अटेम्प्ट हुए थे आपके 90 मिनट्स में। सर टोटल मेरा जो स्कोर बना था ऑलमोस्ट 154 बना था। 154? यस। ओके, ग्रेट। अच्छा, इंटरव्यू तो डिसाइडिंग होता है, फिर एक बार आपका इंटरव्यू कॉल आ गया तो रिटन मार्क्स ऐड नहीं होते ना उसमें, इसरो में? यस सर, आईएसआरओ में नहीं यूज होते हैं, और बीआरसी में भी नहीं यूज होता है, बस ओनली सर डीआरडीओ में यूज होता है। तो इसरो में एक बार कॉल आ गया, इंटरव्यू कॉल आ गया तो फिर बस इंटरव्यू ही होता है वो, राइट? Yes sir, it is like 5:1 before COVID situation, and 5:1, and then it will increase 8:1. Cutoff will further reduce and they will call like 8:1. अच्छा, इंटरव्यू में बताओ यार, आपने चंदन इंटरव्यू दिए हैं, बहुत से इंटरव्यू दिए हैं, तो इसरो के इंटरव्यू में ऐसा क्या पूछते हैं, क्या लगता है आपको? व्हाट डू दे चेक? सर इसरो का इंटरव्यू मोर लाइक सर रैपिड फायर, आई विल से दैट। इस बार रैपिड फायर था, इस बार रैपिड फायर था। मेरे को लगता है इसरो में हमेशा रैपिड फायर नहीं होता। Sir, most of the time, because the time is very less now, like a half an hour mostly. In all the time, like 20, 25, 20, 30 minutes. Unlike in BRC, like more than 1 hour, in like NPCL also right there. So it is like 1.5 hour maybe. But here the time limit is there. So they have to ask many questions. And if you answer correctly, then the chances are very high you will get selected. अच्छा चंदन, मेरे को ये बताइए, आप उन्होंने आपसे जब इंटरव्यू लिया तो आपको लग रहा था कि आपका हो जाएगा? इंटरव्यू के बाद फीलिंग आया था वो? इंटरव्यू के बाद तो सर लगा था, दोस्तों से मैंने बात किया अपने, पहले जब बाहर निकला तो उनको कॉल किया, तो दोस्त सर होते जो प्रॉपर हमें जज कर पाते हैं। तो मैंने सर उन्हें कॉल किया, बताया कि यार पहला तो 10 मिनट बहुत अच्छा गया मेरा इंटरव्यू, उसके बाद फिर बीच में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आ गया तो थोड़ा सा मेरा रिड्यूस हो गया, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूछेंगे वो। अच्छा, आपसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पूछ लिया? यस सर, यस। एनी रीजन फॉर दैट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे क्यों चले गए? सर पता नहीं कि मतलब मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत कीप है, क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर दे एक्सपेक्ट दैट यू नो द प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एज वेल, बिकॉज़ इट इज नॉट आवर कोर सब्जेक्ट एज वेल, बट दे विल एक्सपेक्ट दैट एज अ मैकेनिकल इंजीनियर वी नो दैट ऑल दिस। इसरो में तो दे आस्क यू 5 सब्जेक्ट्स, राइट? कि कौन से अपने सब्जेक्ट्स में फेवरेट बता दीजिए। Yes sir, first they asked about the favorite subject, but they didn't ask anything about my favorite subjects. They go for the any other subject as well. So and what about ITMEC related to your masters in ITMEC and all? ITMEC sir, I didn't mention that because sir currently right now sir I'm doing job, so I mentioned my job, like I working in the roller bearing department at Lucknow. So any question from your job they asked? No sir, they didn't ask anything from my job. Okay Chandan, now tell me, like how many exams did you write which you did not click? ये तो हो गया कि जो अपन एग्जाम लिखे क्लिक हो गए, गेट लिखा, आप इटमैक में पहुंच गए, फिर आपने रेलवेज लिखा सिलेक्ट हो गए, इसरो लिखा सिलेक्ट हो गए। ऐसे बहुत से एग्जाम हुए होंगे जिनमें आपको नहीं मिला होगा सिलेक्शन। हाँ सर, वो सर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि सर वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला है। जैसे मैंने बीआरसी लिखा था 2019 में, तो रिटन में सर मेरे काफी अच्छे मार्क्स थे, बट फिर इंटरव्यू गया सर, मुंबई में इंटरव्यू था उसका, अनुशक्ति नगर में, तो वहां पे सर इंटरव्यू में आउट हो गया मैं। मुझे काफी लॉन्ग चला मेरा इंटरव्यू, लाइक मोर देन 1 आवर, एंड एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर आ जाएगा मेरा, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। तो उससे चीजें मुझे सर बहुत चीजें सीखने को मुझे वहां से मिली, कि कैसे क्या पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, और मैं क्या पढ़ रहा हूँ। मैं तो सीधे मुझे सर क्वेश्चन लग जाते थे, बट इंटरव्यू में कैसे बोलना भी होता है, लोगों को एक्सप्लेन करना होता है, मैं खुद को एक्सप्लेन करने लगता था, चल रहा था मैं Okay, so Chandan, you were telling about your BARC interview, so please proceed ahead. सर बीआरसी, अभी सर बीआरसी का रिजल्ट जस्ट अभी आया 2021 का,
तो मैं बताना चाहूंगा सर कि मतलब वहाँ पे मोस्टली सर दे विल आस्क अबाउट द फेवरेट क्वेश्चंस ओनली, दे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट्स ओनली, सो यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स एंड तो मैंने सर 5 सब्जेक्ट के वहाँ पे नाम उनको बताया, सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम ओनली दिस सब्जेक्ट्स ओनली। एंड वहाँ पे सर इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन कुछ कुछ मिस्टेक सर मैंने की थी, मतलब मैं क्या होता सर, डायरेक्ट मैं जंप कंक्लूजन पे जंप करता था, सीधे आंसर पे जंप करता था। तो वो मुझे फंसाने की पूरी कोशिश करते थे कि तुम कैसे यहाँ पे जंप किए, क्या स्टेप्स थे तुम्हारे, अजम्पशंस क्या थे, तो मैं इन चीजों को सर मिस करके सीधे मैं कंक्लूजन पे आ जाता था। तो इन सब इसका चीजों को इसका सर मतलब मैंने, ये हुआ कि जब आप बीएआरसी के इंटरव्यू में जाओ तो आपको हर एक चीज को डिटेल में बताना है, इवन अजम्पशन। यस सर, स्टार्ट करना है, फ्रेम करना है सर आंसर्स को पहले, डायरेक्ट सीधे आंसर नहीं क्लिक कर देना है वहाँ पे। आपको एग्जांपल दे सकते हैं चंदन, क्योंकि स्टूडेंट सुनेंगे और उनका बीएआरसी का इंटरव्यू भी आ गया है अभी, एज यू नो। यस सर, तो यस कुछ सर, एग्जांपल दे सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कि यार यस ऐसे सर। करना चाहिए था और मैंने ऐसा गलत कर दिया था। जैसे मान लीजिए फोरियर हीट कंडक्शन इक्वेशन पूछा 1 डायमेंशन का फॉर द स्लैब ओनली, हाँ जी। तो सर आई व्हाट आई राइटली Q इक्वल टू माइनस के ए dt over dx, temperature gradient and thermal quantity with the area now. So I didn't write anything, I didn't say anything, just write this equation. So then they start me telling that what is K, what is A. So it is better to that we will start with Fourier heat conduction. What are the assumptions? Like it should be valid for the 1 dimension and it will be for the steady state as well. And temperature gradient will be constant and thermal conductivity is also constant. And material must be a homogeneous and isotropic in nature. This is what we have to say. सही So है। this is the complete thing. I will say. Just directly don't say और like Q आराम equal to से minus बोलना K. चाहिए, मतलब हेस्ट में नहीं बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इन डिटेल। Yes, sir. In detail, so that the chances will be very high, और sir. आपने क्या मिस्टेक किया था? मैंने सर मिस्टेक की थी, मैं जैसे सर मैं बनारस से था, तो मैं बोला कि सर आई एम फ्रॉम वाराणसी, तो सम पीपल आर वेरी गेट एक्साइटेड like I have been in Varanasi and I want to go into Varanasi. It's a very holy city and all. So Mr. Chandan, could you please guide me how I reach your home from Mumbai to Varanasi? So sir, मैंने सर उन्हें गाइड किया कि सर you take a train and then come to there and Pandipur crossing is there and from there sir my village is almost 10 kilometers from Pandipur crossing. तो उन्होंने सर बात को पकड़ा कि ओके ओके पांडेपुर क्रॉसिंग यू मेंशन राइट, तो मैं बोला हाँ सर पांडेपुर क्रॉसिंग, तो उन्होंने बोला डू यू सी साइनिंग बोर्ड देयर एनी, मैं बोला यस सर देयर आर मेनी साइनिंग बोर्ड्स आर देयर। तो उन्होंने सर एक A4 शीट का पेज था, वहाँ पे पेंसिल वगैरह सब रखी होती वहाँ पे, तो उन्होंने क्या किया उस शीट पे बड़ा सा वो फ्लैग सा बनाया और उस पे लिखा पांडेपुर क्रॉसिंग, तो बोला डिजाइन दैट साइनिंग बोर्ड। तो फिर मैं वहां से डिजाइन उसको करने लगा कि एयर डायरेक्ट फोर्स लिया वहाँ पे, ठीक है, तो वहां पे सर एक ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा और बेस पे एक बेंडिंग मोमेंट भी आएगा वहां से, और फिर मैंने उसका सेल्फ वेट भी ले लिया उस झंडे का, जो मतलब जो साइनिंग बोर्ड जो था वहाँ पे, तो थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया प्रॉब्लम्स को, लेकिन सर मैं सॉल्व करता गया। तो मैंने सर एक चीज मिस कर दी वहाँ पे, वो जो ट्विस्टिंग जो कर रहा था ना सर, जो एयर ट्रैक जो प्रेशर जो लग रहा था प्रोजेक्ट एरिया पे, एयर का जो प्रेशर जो लग रहा था, उसके कारण जो ट्विस्ट मोमेंट जो आ रहा था उसके, उस ट्विस्ट मोमेंट को सर मैं डायग्राम बनाया था, लेकिन उसको कैलकुलेशन में मिस कर दे रहा था बार बार, तो वो बार बार बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया था काफी ये, तो मैंने उससे ड्राइव किया, मोर सर्कल भी बनवाया इसका मुझसे, सब चीज मैंने किया, लेकिन ये मिस्टेक सर मैं बार बार ये वाला जो चीज थी मैं मिस कर दिया ट्विस्टिंग मोमेंट। तो उन्होंने काफी हिंट देने की कोशिश की कि चंदन डू यू थिंक दैट एवरीथिंग इज ओके, आई थिंक समथिंग इज मिसिंग। So they are very supportive and most of the member will give you the chance, like they try to give you hints so that we can understand where we did the mistake and all. बट सर मेरा वहां पे ध्यान जा नहीं रहा था, मैं वो ट्विस्टिंग मोमेंट बनाया तो था डायग्राम में, लेकिन मैं उससे कैलकुलेशन उसको मैं ले नहीं रहा था बार बार, तो उन्होंने बोला ओके इट्स फाइन आफ्टर 10 minutes ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग, तो बोला ओके फाइन। तो ये एक मिस्टेक आपको लगता हुआ था? हाँ हाँ, और बाकी सर बीच बीच में क्वेश्चंस आते रहते थे, जैसे बॉडी फोर्स क्या होता है, व्हाट इज सरफेस फोर्स, व्हाट इज बॉडी फोर्स, बीच बीच में सर इसी में क्वेश्चन यहीं पे आ रहा था, मैकेनिक्स के भी क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा तो चंदन, थोड़ा अब सा किसी स्टूडेंट ने जब बीएआरसी के इंटरव्यू ढंग से देना हो तो उसको कैसे, क्या हाउ ही शुड अप्रोच? सर पहले तो सर फंडामेंटल से जाएं, पूरा जो बुक्स हैं सेंजल वगैरह की स्टैंडर्ड बुक पहले आप लोग पढ़ लें, जितना आप 5 सब्जेक्ट अगर है तो उनकी बुक्स तो जरूर पढ़ लें, पांचों की पांचों, इंट्रोडक्शन पार्ट और थोड़े से न्यूमेरिकल पार्ट्स की, क्योंकि वहाँ पे आपकी सॉल्विंग अप्रोच भी देखते हो कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो प्रॉब्लम्स को। तो जब हम अप्रोच करें किसी प्रॉब्लम को, तो वहाँ पे सबसे पहले सर assumptions लिखें कि what are the given material should be isotropic and homogeneous and all, it should be steady state or not, like sir give an example for the Fourier heat conduction। तो सर इस तरह से हमें सर अप्रोच करना चाहिए प्रॉब्लम्स को, क्योंकि वो सर हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखते हैं, ना कि आंसर देखते हो। सही, आंसर में नहीं, उनको अप्रोच में फोकस होता है। हाँ, और सर आपके वीडियो सर काफी हेल्पफुल रहे थे उस टाइम पे भी, हमने सर लाइक मैराथन के जो वीडियोज है वो मैराथन काफी वीडियोस हेल्पफुल है। वो हाँ बेसिक्स तो आपका सर रिवाइज हो जाएगा।
हाँ बेसिक्स रिवाइज हो जाएगा वहां से, आप काफी चीजें वहां से कवर कर सकते हैं। अच्छा चंदन, अब बीआरसी में तो हुआ नहीं, इसरो में हो गया। हाँ सर। हाँ, कई तो, सारे एग्जाम्स है सर बीच में, जैसे बीआरसी में नहीं हुआ 2019 में। अच्छा हाँ फिर 2020 में सर जब मैं राइट किया तो डीआरडीओ का एग्जाम था सर दिसंबर 2019 में। अच्छा। ऐसे डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है सर, गेट के स्कोर पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर वहां से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। तो हम्म मेरा सर डीआरडीओ भी क्वालिफाई हो गया था। हम्म डिस्क्रिप्टिव में सर अच्छे मार्क्स थे, लेकिन हम्म सर अगेन फरवरी में उसका इंटरव्यू था 2020 में। हम्म तो काफी कम टाइम में थे, बस 10 दिन दिया था सर उन्होंने, मतलब हम्म रिजल्ट के बाद 10 दिन इंटरव्यू का टाइम दिया। हम्म तो मैं सर उस टाइम पे दिल्ली में ही था, तो फ्रेंड वगैरह काफी मुझे सर रिजल्ट आने के बाद काफी कंग्रेचुलेट किया, बट बोले कि भाई 10 ही दिन है तेरे पास, इस चीज को थोड़ा माइंड में रख और बहुत फोकस हो जा अभी। हम्म तो फ्रेंड सर जो थे सर हमेशा सपोर्ट करते थे, लाइब्रेरी में रहते थे हम लोग, साथ में जाना साथ में खाना सब चीज हमारे साथ में होता था। हम्म हाँ लाइक ट्रायो प्लेयर था, लाइक सुधांशु एंड अंशुल, तो सर हम्म दोस्त थे, हम ट्रायो प्लेयर में रहते थे हमेशा। तो वो हम्म सर हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि भाई देख तेरे पास 10 दिन है, जो करना है तू कर सकता है इसी 10 दिन में ही। हम्म तो मैंने सर पूरी मेहनत की वहाँ पे, सब चीज अपना रिवाइज करके गया, अच्छे से गया। हम्म इंटरव्यू अच्छा गया, लेकिन कई जगह सर यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई मुझसे। हम्म मतलब मैं शुरू में ही घबरा गया, जो हुआ तो इजी क्वेश्चंस के भी आंसर नहीं दे पा रहा था वहाँ। हाँ तो सो वहाँ पे सर कुछ चंदन, अभी फाइव डीआरडीओ है। का जो इंटरव्यू हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या, क्यों क्लिक नहीं हुआ वहां पे, और वो पैटर्न कैसे डिफरेंट है। सर डीआरडीओ के इंटरव्यू में क्या होता है कि ऑलमोस्ट सेम सेम होता है, वहाँ पे आपको फेवरेट फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। 6 to 7 बोर्ड मेंबर्स आर ऑलरेडी बीन देयर, हम्म some of the professor from IIT is also been there. हम्म Like in my case, some of the professor from IIT Madras, they also been there. हम्म So तो मैं इंटरव्यू से स्टार्ट हो गया, वहाँ पे चीजें सारी अच्छी स्मूथली चल रही थी, प्लेस एफडी फैमिली बनाया हुआ। डीआरडीओ में क्या होता है सर, उन्होंने एक आईपैड देते हैं, आप आईपैड पे आपको लिखना होता है, हम्म और स्क्रीन आपके जस्ट पीछे होती है, आप स्क्रीन नहीं देख सकते, लेकिन वो लोग देख सकते हैं, हमारे पीछे होती है सर स्क्रीन बड़ी सी हम्म डीआरडीओ में। तो वो स्क्रीन पे आता है, जो हम लिखते हैं यहाँ पे वो स्क्रीन पे आता है, तो वो देख लेते हैं कि आप बना रहे हो। तो हम्म ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर अदर मतलब अदर ऑर्गेनाइजेशन से डीआरडीओ का। हम्म हाँ तो उन्होंने सर फिर क्वेश्चन स्टार्ट किया पूछना, तो वहां से उन्होंने बेरिंग से स्टार्ट किया पूछना क्वेश्चन, बेरिंग्स। हम्म हाँ तो पहले से स्मूथली जा रहा था, तो वहां हम्म पे सर मैंने एक मिस्टेक कर दी, जब बेरिंग की जब लाइफ के बारे में जब उन्होंने पूछा, हम्म तो मैं L10 लिख दिया था वहां पे L10। हम्म तो उन्होंने वहां पे सोचा कि थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, L10 और L90 में डिफरेंस पूछा कि L10 और L90 क्या सेम है या डिफरेंट है। हम्म फिर चले गए कि L20 और L80 में क्या डिफरेंस है, मैं बोला सर सेम है, तो फिर बोले L20 L80 क्या सेम है। एक्चुअली सर होते सेम है, बट उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है। हम्म ये सर बुक्स में भी नहीं था, काफी डीप क्वेश्चन था ये। तो मुझे हम्म काफी अच्छा लगा, रीजनिंग टाइप का था ये। हम्म मतलब वो तो यहाँ यहाँ थोड़ा मैं ट्रैप हो गया यहाँ पे, तो फिर उन्होंने काफी यहाँ पे ट्रैप किया मुझे। तो हम्म फिर मैं सॉरी बोल के फिर आगे बढ़ गया उधर। हम्म फिर फिर प्रोडक्शन से भी क्वेश्चन आए काफी। हम्म तो फिर प्रोडक्शन में भी थोड़ा सा बताया, लेकिन उतना कॉन्फिडेंट नहीं था प्रोडक्शन, हम्म क्योंकि थोड़ा कुछ आउटर पूछ रहे थे, जैसे उन्होंने रीमिंग प्रोसेस के बारे में पूछा था, सरफेस फिनिश के बारे में मोस्टली पूछ रहे थे वो। हम्म हाँ और बाकी सर सोम फ्लूइड ये सब तो अच्छा गया था मेरा इंटरव्यू, सोम जो था फ्लूइड अच्छा गया था। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से भी क्वेश्चन थे, वो भी अच्छे गए थे। बट सर कुछ जगह मिस्टेक्स हो गई थी, तो वही 5 to 6 मार्क्स सर इसमें रुक गया। 60 मार्क्स कट ऑफ होती है, तो आई गेट अराउंड सर 53-54 मार्क्स। ओके। और एंड देन चंदन, सर, हाँ फिर सर यही था डीआरडीओ का सर एक्सपीरियंस, अच्छा तो एक्सपीरियंस था काफी। आपका डीआरडीओ बीआरसी इसमें आपका क्लिक नहीं हुआ, एनी अदर एग्जाम, एनी अदर इंटरव्यू जिसको आपने लिखा हो एनपीसीएल, आपका। फिर एनपीसीएल का हुआ सर। हम्म एनपीसीएल का सर अभी अगस्त में हुआ था इसी ईयर में। हम्म तो कल पक्का में था उसका सर, पौंडीचेरी के पास में, तो वहां सर मैं गया था एनपीसीएल का इंटरव्यू देने। हम्म तो गेट 2020 में सर उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया था। हम्म हाँ तो वहां पे जब गया तो सर इंटरव्यू इसका एनपीसीएल काफी अच्छा गया। इन्होंने सर क्या किया, मोस्टली इस बार मुझसे मेरे जॉब के बारे में पूछा कि हम्म बेरिंग्स में सर मैं यहाँ पे जॉब करता था, तो मोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन विल कम फ्रॉम द रेलवेज ओनली, लाइक ओके। व्हाट आर द बेरिंग्स एंड व्हाई वी यूज दिस काइंड ऑफ बेरिंग ओनली, why you don't use this kind of bearing, what are the different kinds of bearing and all, and what is the bearing life. So most of the questions are already, I have revised all the perspective, like what is the material of the bearing, how you mount and dismount, what are the processes, how we clean the bearing and all. So sir, I'm very aware about this thing because I prepare very well, because I know that the question definitely Interview going to ask. be asked from the, as you told in a mock interview sir, you have to focus more on the bearing if you are comfortable. So in last line sir, I add in my introduction itself, like sir, I work in the roller bearing shop in a very highlighted way, so that they will definitely going to ask that question from the bearing. They got a smile because when they see bearing, because bearing is a very vital component, sir. Yes, yes, As you yes. know, for the mechanical people, bearing is Mm, very important, mm, and definitely some question will come from there. So start from the bearing,
एंड फिर उन्होंने सर पूछा कि डू यू नो हु इज नीरज चोपड़ा। तो उस टाइम पे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे, तो मैंने बोला हाँ सर, आई नो दैट ही इज ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड ही इज अ जेवलिन थ्रोवर एंड ऑल। तो सर उन्होंने पूछ लिया कि एट व्हाट एंगल ही थ्रू द जेवलिन, डू यू नो एट व्हाट एंगल दे थ्रू द जेवलिन। तो सर ये काफी मतलब काफी यूनिक सा था। तो मैंने क्या किया था, कुछ दिन से पहले मैं पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था। तो पेपर में सर यहाँ पे ओलंपिक के बारे में दिया था कि कैसे हम जेवलिन को पकड़ते हैं, कैसे थ्रो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स थी। तो वहां पे सर एक वर्ड लिखा था कि फिजिक्स में क्या होता है, हम सर 45 डिग्री में फेंकते हैं तो मैक्सिमम रेंज आता है 45 पे। हाँ, लेकिन सर यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारा जो ह्यूमन हैंड होता है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, अब तो आइडियल कंडीशन रही नहीं, एयर रेजिस्टेंस भी आता है और हमें पुल भी करना होता है मैक्सिमम वेलोसिटी से, फोर्स लगा के उसको। तो एंगल जो होता है वो 30 से 39 के बीच में वेरी करता है। So I'm sure about sir this angle. So I told that sir it will be in the range of 36 to 39 degree and I have read in the newspaper. And yes sir, फिर उन्होंने स्माइल किया। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि ओके चलो हम तुम्हें रेंज दे देते हैं और एंगल तुम 45 डिग्री मान लो, और अब ये बताओ कि उसने किस वेलोसिटी से फेंकी होगी। अच्छा, ये चोपड़ा जी ने इसको किस वेलोसिटी से फेंकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी से किससे फेंकी होगी। तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन था। तो फिर मैं तो मैं क्या किया सर, फिर डायरेक्टली सर फॉर्मूला उसके लिख दिया मैंने, रेंज के फॉर्मूला लिखे, हाइट के फॉर्मूला लिखे, वहां से सर उसको लाके उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल दी वहां से, क्योंकि रेंज दिया था क्वेश्चन। तो बोला नो 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 मिस्टर चंद्र, वी डोंट वांट लाइक यू डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन, हाउ यू गेट दिस फॉर्मूला एंड ऑल। अच्छा। हाँ, तो फिर उन्होंने पूरा सा डेरिवेशन मुझसे करवाया कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करवाया, फिर रेंज का फॉर्मूला कैलकुलेट कराया, फिर वहां से सर मैं पूरा रेंज का फॉर्मूला कैलकुलेट किया, फिर वहां से इनिशियल वेलोसिटी मैंने कैलकुलेट किया, तो वहां पे सर उन्होंने सेटिस्फाई लगे वहां पे। ओके, सो एनपीसीएल में नॉर्मली इतना तो पूछते नहीं है वो। हाँ सर, मोस्टली 1 आवर चलता है अभी, क्योंकि बोर्ड पैनल सर ऑलमोस्ट सेम होता है, बीआरसी एनपीसीएल का बोर्ड पैनल ऑलमोस्ट सेम होता है। ओके, क्योंकि वो भी न्यूक्लियर की है तो बोर्ड पैनल ऑलमोस्ट सेम होता है उनका। तो लेकिन एनपीसीएल में आपका क्लिक नहीं हुआ? हाँ सर, आई गेट लाइक 70 मार्क्स, कट ऑफ फॉर द इंटरव्यू 70 मार्क्स एंड आई गेट ओनली 70 मार्क्स, सो आई विल से दैट आई विल क्वालिफाई दिस एग्जाम बिकॉज आई गेट द 70 मार्क्स। आई कुड नॉट गेट, आपका 70 नंबर आ गए? हाँ, 70 सर कट ऑफ भी थी। अच्छा, और आपका हो गया, क्वालिफाई हुआ, एनपीसीएल नहीं हुआ? नहीं सर, वेटिंग लिस्ट में था, तो क्वालिफाई तो हो गया बट वेटिंग लिस्ट में था। अच्छा, और 70 ही नंबर चाहिए था, तुम्हारे 70 ही नंबर हैं? और मेरे 70 ही एग्जैक्टली है, तो इस बार सर मुझे लगा कि चलो कुछ अच्छा हुआ है, क्योंकि फर्दर सर मेरा इंप्रूव भी हुआ, जैसे बीआरसी में फेलियर हुआ, फिर डीआरडीओ में कुछ मार्क्स से चुके, तो फिर एनपीसीएल में एकदम 70 में एकदम 70 ही आ गए। अगर थोड़े पॉइंट वन भी ज्यादा आते तो सर सिलेक्शन हो जाता हूँ। सही है, सही है। फिर फाइनली सर आईएसआर में हो गया। एनी अदर एग्जाम चंदन? आरआरबी लिखा था सर, गेट एंड ईएससी सर मैंने लिखा था, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो यूपीएससी में सर काफी कम मार्क्स से वहां भी चुक गया था 2018 में भी। उस टाइम पे अच्छी प्रिपरेशन थी मेरी सर, कॉलेज के साथ ही कई दोस्त हम तैयारी साथ में कर रहे थे, तो प्रिपरेशन अच्छी थी, लेकिन वहां भी मिस्टेक काफी हो गए, मतलब नेगेटिव मार्क्स मैंने काफी दे दिए। मुझे पेपर काफी इजी लगा, मैंने अटेम्प्ट काफी कर दिए, और बाद में जब कैलकुलेट किया तो मुझे लगा कि 50 नंबर तो मैंने नेगेटिव ही कर दिया, इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया था। फिर भी मेरे टोटल स्कोर सर अराउंड 240 थे, एंड जो कट ऑफ गई थी 256 गई थी उस साल। अच्छा। फिर 2019 में दिया, तो 2019 में सर कट ऑफ गई थी 187 एंड आई गेट लाइक 182 मार्क्स, लाइक ओनली 1-2 क्वेश्चंस आर मिसिंग अगेन। 2019 काफी टफ पेपर था, क्योंकि सर कट ऑफ सीधे 256 से सीधे 187 चली गई थी, 187। अच्छा चंदन, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जैसे आजकल ना सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स कम हो रही है, जैसे पहले तो मैं इसरो का भी तुमसे पूछना चाहूंगा कि इसरो के बारे में एक पता नहीं र्यूमर है क्या है कि सब अब ये रिक्रूटमेंट रोकेंगे या क्या है, आपको कुछ जानकारी है इस बारे में, इसरो की रिक्रूटमेंट के बारे में? सर अभी तो कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ आया नहीं है, तो किसी को कुछ जानकारी भी है नहीं, क्योंकि सर डेफिनेटली दे आर गोइंग टू है। इसको कमेंट करना भी ठीक नहीं है फिर तो। हाँ सर, बिकॉज़ वी डोंट नो एंड ब्लाइंड गेस इज, आई थिंक सर इट इज नॉट, दैट इज नॉट गुड, वो र्यूमर ही रहेगा। यस अच्छा, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे नंबर ऑफ सीट्स अभी कम होनी है, गवर्नमेंट का भी ऑब्वियसली अब रुझान है प्राइवेटाइजेशन की तरफ, एयर इंडिया हुआ है, बीपीसीएल हुआ है, विशाखापट्टनम स्टील हुआ है, तो आगे जैसे चीजें कम हो रही हैं, तो जो लोग जाना चाहते हैं इन जॉब्स में, जैसे इसरो, डीआरडीओ, इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो पैशनेटली जाना चाहते हैं कि भाई साहब जैसे किसी ने डिसाइड किया मेरे को तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना है, और वो एमईएस के थ्रू, और नंबर ऑफ सीट्स पूरे इंडिया में जैसे बोल दिए 30 सीटें हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज की, ये चीज एक डिमोरलाइज करती है स्टूडेंट्स को एग्जाम लिखने से पहले। मतलब आप एक करो कि अगर सपोज 1000 सीट डिक्लेयर होगी तो बच्चा मोटिवेट हो जाएगा, और 1000 नहीं हुआ, 100 सीट हुई तो बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा। इस चीज से कैसे ओवरकम करें? क्योंकि इवेंचुअली एज अ टीचर मैं जानता हूं कि चाहे सीटें 30 हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 100 हैं,
जिसने निकालना है वो निकाल भी सकता है, उसको तो एक ही चीज चाहिए। तो इस हाँ, चीज हमें को तो एक ही कैसे चीज ओवरकम कर सकते हैं, थिंकिंग को कैसे ओवरकम कर सकते हैं चंदन? चाहिए। सर अभी ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो कि 100 सीट है सर अभी, एंड कट ऑफ गई है आपकी, सपोज करो 100 में आउट ऑफ 60 कट ऑफ गई है 100 सीट के लिए। तो सर अगर वो सीट अगर वो 500 होती ना, तो कट ऑफ मैक्सिमम 65 ही जाती, 62 जाती। तो कट ऑफ में उतना डिफरेंस नहीं आता सर। पहले हम जैसे 60 मार्क्स अगर कट ऑफ है 100 के लिए, अगर वो 65-70 ही जाती मोस्टली, अगर 500 बच्चे हो जाते तो 70 तक जाती। तो मतलब इसी के 10 जो 10 नंबर है ना सर, वो 10 नंबर है मैक्सिमम रेंज के लोग रहेंगे यहाँ। तो हमें, मैं ये बोलना चाहूंगा सर कि कोई भी एग्जाम जैसे लिखने जा रहे हैं, तो पहले उस एग्जाम से पहले हम जान लें क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर अगर लगे कि हम कॉन्फिडेंट हैं तो देना चाहिए, भले उसमें कम सीट्स जो है आपको अपीयर होना चाहिए वहाँ पे। मतलब और ऐसे मेंटेलिटी होना चाहिए कि मैं अपनी तैयारी करके देता रहूं। हाँ, डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन है तो एग्जाम्स कई सारे आते हैं। मतलब जिंदगी सर हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी हमेशा देती है, सही बात जैसे है। मेरे साथ आपका था। आपका टिपिकल एग्जांपल है कि आपकी तो हाँ ग्रोथ ही हुई है। आपने 18 में हाँ स्टार्ट किया, 18 में गेट हुआ नहीं, फिर आपका 19 में आपको आईटी दिल्ली मिल गया, हाँ फिर हाँ आपको इन द सेम टाइम रेलवेज मिल गया, फिर आप और ट्राई करते रहे, फिर आपको अब इसरो भी मिल, आप वेटिंग लिस्ट एनपीसीएल में आ गए, फिर आपको इसरो भी मिल गया। तो आपका जैसे ग्रेजुअली ग्रोथ हुआ है वैसे होता हाँ रहा। सर। हाँ, बीच में सर कभी कभी नहीं भी होता था, जैसे बीएचएल में ही नहीं हुआ मेरा। तो हम्म कई सारे ऐसे भी होते थे जहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि मेरा जीएस अच्छा नहीं था, जनरल हम्म स्टडीज मेरा अच्छा नहीं था। ओके तो वहाँ पे सर मैं जनरल स्टडीज से होता नहीं, टेक्निकल बन जाते थे क्वेश्चन, बट जनरल स्टडीज नहीं होते थे। तो हम्म पीएसएस एग्जाम से लिखना ही बंद कर दिया मैंने, कुछ मार्क्स से बीएचएल में मेरे रह गए। तो मुझे हम्म लगा सर मुझे टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि जो कि मुझे सर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ही जाना था, क्योंकि हम्म, शुरुआत से मेरा इंक्लिनेशन वहीं पे था। सही तो है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी सर बीआरसी में सिलेक्ट हो चुके थे, हम्म, कुछ लोग एनपीसीएल में चले गए थे। तो मुझे काफी मोटिवेशन वहां से मिलता था कि मैं भी कर सकता हूँ यार, अगर मेरा रूममेट जा रहा है तो मैं भी तो जा ही तो सकता मैं हूँ भी ना। जा सकता हूँ। हाँ, तो उन्होंने सर आपका चैनल भी लिया था यूरोपीडिया का, उस टाइम पे साकेत में चल रहा था, बैचेस फ्री में थे सर उस टाइम पे। हम्म, तो उन लोगों ने सर ज्वाइन भी किया था, वहाँ पे साकेत में गए कई लोग, तो मेरे साथ हम्म, के भी थे। तो हम्म, कई लोग सर नीति में हो गया, कई लोगों को हम्म, आपने ही गाइड किया था उन्हें, हम्म, और कई लोगों का सर बीआरसी में भी हो गया। तो मतलब लगे रहना चाहिए चंदन, और डिमोरलाइज बिना हुए डिमोरलाइज, बस पुश करते रहना चाहिए, राइट? हाँ हाँ सर, यही है, क्योंकि कंपटीशन में क्या है सर कि अगर एक बार लेवल पहुंच जाता है तो फिर सारे एग्जाम्स निकलने लगते हैं फिर सही टेक्निकल। बात है, सही बात है। तो अच्छा, ये अगर निकलता है तो सारे निकलते हैं। सारे निकल जाते हैं, फिर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। अच्छा, आप क्योंकि आपने कुछ टाइम आईआईटी दिल्ली इटमेक डिपार्टमेंट में भी लगाया है, तो मैं उससे रिलेटेड थोड़ा सा पूछूंगा। देखो, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो, हर बच्चा इसरो नहीं जा हाँ सकता ऑनेस्टली स्पीकिंग। एमटेक भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, एमटेक के थ्रू भी हाँ बहुत अच्छी जॉब्स लगती हैं। और हाँ मैं बच्चों को ये मोटिवेट करता भी हूँ कि अगर आपको एमटेक मिल गया है, मेहनत करो, और उससे भी आपका करियर निकल सकता है। हाँ सर, डेफिनेटली इसके बारे डेफिनेटली। में थोड़ा सा मैं चाहूंगा आप 2-4 लाइन बताएं। सर जैसे कि मैं अब बताया सर एमटेक। चंदन, एक और, सॉरी टू इंटरप्ट, क्योंकि आपका डिपार्टमेंट इटमैक था, इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी था, जो इंटरडिसिप्लिनरी था। मैं यस आपको सर, यस यहाँ सर। 2-3 बातें बताता हूँ जो बच्चों के दिमाग में है, 2-3 कंफ्यूजन। पहला, हाँ कि हाँ साहब जॉब लगती है ओनली कोर में, नॉन कोर में या इंटरडिसिप्लिनरी में जॉब नहीं लगती। पहला तो दिमाग में हाँ। ये मान के कि अगर मैं हम्म। मैकेनिकल में एमटेक करूंगा तो नौकरी लगेगी, इटमैक में करूंगा, एनर्जी स्टडीज में करूंगा तो शायद ना लगे। पहला कंफ्यूजन जो आपने हाँ आंसर में अपने करना है। नंबर 2, जॉब लगना किसी भी आईआईटी में 2 तरीके से होता है। एक तो कोर ब्रांच में लग गया, एक आपका जैसे हाँ डाटा साइंस लग गया, और आपका कंप्यूटर आईटी में लग गया, दूसरा वो होता है। और बच्चों के दिमाग में ये भी है, चाहे सैलरी नॉन कोर में ज्यादा है, लेकिन बच्चों के दिमाग में कि साहब हमने नॉन कोर में नहीं, हमें तो कोर की ही चाहिए। और वो भी एक उनके दिमाग में है कि जॉब लग भी जाएगी तो हम्म, नॉन कोर में लगेगी। हाँ हाँ। और पता नहीं करियर कैसा बनेगा। ये 2-3 कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के हैं, आप इसको प्लीज आंसर करें। सर पहले तो मैं बताना चाहूंगा, जो इटमेक डिपार्टमेंट है सर वो मोस्टली मैकेनिकल के लिए ही है। अच्छा, मतलब बेरिंग्स गियर इनके मतलब एडवांस उसी से वर्जन में रिलेटेड है। पढ़ते हैं। हाँ, मोस्टली सर मैकेनिकल का डिजाइन पार्ट है, बोलेंगे मोस्टली सर इट इज एप्लीकेशन पार्ट, नॉट द थ्योरेटिकल पार्ट। सही है। लाइक सर भी लेबोरेटरी सर काफी अच्छी थी वहाँ पे, ट्राइबोमीटर सारे लेबोरेटरी काफी अच्छे थे, और हमारे स्ट्रक्चर भी काफी अच्छे थे। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ पे सर, चीजें प्रैक्टिकली होती थी, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता था वहाँ पे। रियल लाइफ के प्रोजेक्ट चल रहे होते होते थे, एनटीपीसी से चल रहा होता था, फोर्ड मोटर से था, मर्सिडीज बेंच का था। तो हमें दिखता था कि हाँ चीजें चल रही हैं, ब्रेकिंग पे काम हो रहा है, बेरिंग्स पे काम हो रहा है, और इरोजिव वेयर पे काफी बढ़िया मशीन थी, वो काम हो रहा है। तो मैं बोलूंगा इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच सर इसलिए बढ़िया होती है, क्योंकि वो ना कई सारी ब्रांचेस को मर्ज करती है। तो सही है। इसलिए आपके चांसेस जो होते हैं ना प्लेसमेंट के, वो काफी हाई होते हैं एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस। हम्म वी आर एलिजिबल फॉर मेनी थिंग्स, लाइक द कंपनी कम फ्रॉम द like different domain apart from the bearing, so they are, it is like we are specialized in bearing only.
सही तो है। बेरिंग की कंपनी सर जो आएगी वहां से भी हमें हायर करेंगे, और नॉन कोर में तो सर अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है। हम्म तो नॉन कोर में क्या है सर कि सीन वहां पे ऐसा है, जिसको कोडिंग आती है, जो कोडिंग पे मास्टरमाइंड है, उसका प्लेसमेंट सर वहाँ लिखा होता है आईटी। हम्म जो ओल्ड आईआईटीज है वहाँ पे आपका प्लेसमेंट आपको लिखा है, इजिली आपको प्लेसमेंट 10 to 12 लाख से ऊपर आराम से हो जाएगा वहाँ पे। मेरे साथ कई सारे फ्रेंड्स थे जिनका कहीं ना कहीं हो ही गया है। हम मोस्टली 11 लाख से ऑलमोस्ट मोर देन 8 पीपल विल गॉट, ऑलमोस्ट दे आर सेटल्ड। और जो जॉब सर आई थी, नॉन कोर में जॉब ज्यादा होती है और कोर में जॉब सर कम होती है, और उनका पैकेज भी काफी कम होता है, लाइक 8 to 9 लाख ओनली। पैकेज भी कम होता है उनका, प्लस अब जो सोचते हैं सर कोर जो बैठा के रखते हैं दिमाग में कि कोर में ही जाना है मुझे, तो बट इन द एंड में सर क्या होता है कि सब लोग सर पैसे देखते हैं कि मेरा कितना हाईएस्ट पैकेज लग सके। सही है, पैसा भी ज्यादा है और आपको इवन अब्रॉड फॉरेन डेस्टिनेशन पे भी जॉब करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है नॉन कोर से। हाँ हाँ, और सर अगर अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तब आप कोर में जा सकते हो, लेकिन अगर जॉब आपको ओरिएंटेड हो तो आपको मैं बोलूंगा इंटर डिसिप्लिन में जाओगे आप आराम से, वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आपके पास काफी टाइम होता है। आप कुछ कोर्स वर्क अपना मैनेजमेंट स्टडीज से भी ले सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी ले सकते हैं। बहुत सारे दोस्त मेरे साथ लिए भी थे सर, मैं भी लिया था सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कुछ दिन गया वहाँ पे, अच्छा लगा काफी। प्रोफेसर देशमुख काफी अच्छे थे वहाँ पे, और मेरे डिपार्टमेंट सर विजय मैम थी एंड टंडन सर, दे आर वेरी गुड एंड दे आर ऑलवेज encourage us to doing further better and all। तो मैं बोलूंगा कोई डिफरेंस नहीं होता कोर एंड नॉन कोर में, हम इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांचेस और इस ब्रांच में अगर आप हो कैपेबल तो आप वहाँ पे जॉब ले लोगे इजिली। अच्छा, कई सारे मेरे किसी को फ्रेंड लिए हुए हैं। किसी को चंदन कुछ कोडिंग नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, कोडिंग भी नहीं आता, मतलब को कोई लैंग्वेज भी नहीं आती, C++ वगैरह कुछ नहीं आता, एमटेक में एडमिशन ले लिए, तो क्या वहां पे मैनेज कर सकता है? यस सर, डेफिनेटली वहाँ पे कई लोग जाके मेटलैब का कोर्स वर्क करते हैं। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट जाके कोर्स कर सकते हैं, लाइक एआई का कोर्स वर्क सर मेरे फ्रेंड ने किया था, सुधांशु ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसको काफी सर बूस्ट मिला। लाइक इन प्रोजेक्ट भी उसका उसी में था, तो उसको सर एचसीएल में उसका प्लेसमेंट हुआ, काफी अच्छा प्लेसमेंट था उसका, मोर देन 12 लाख पर एनम सर था उसका। तो काफी बढ़िया होता है, मतलब आप प्लेस हो जाओगे वहाँ पे अगर हो, आप सीखने की आपकी है अंदर, सीनियर से कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, कैसे प्लेसमेंट लेना है, कैसे प्लेसमेंट लेना है, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। अगर आप क्यूरियस हो ना, अगर आप क्यूरियस हो तो आपका प्लेसमेंट वहां पे से रखा होता है ओल्ड आईटीज में। सही बात है। अच्छा चंदन, आपने अपने 2 क्लोज दोस्तों के नाम लिए हैं, कि एक बार फिर से बोलेंगे कौन कौन है आपके क्लोज फ्रेंड्स? सर आईटी दिल्ली में तो सर अंशुल और सुधांशु रहेंगे। अच्छा, तो आप दोनों कहाँ पे हैं? दे बोथ आर प्लेस्ड नाउ? यस सर, सुधांशु लेजिंग सर एचसीएल एंड अंशुल सर अभी डीटी बॉम्बे में सर उसने एडमिशन ले लिया, फाइनलिस्ट का सिलेक्शन वहां से हो गया था। सर सबका सर इम्प्रूव हुआ था, मतलब आईटी दिल्ली ने सबको बदला ही था, सबके स्कोर इम्प्रूव हुए थे, पॉजिटिव हुआ सबकी था। पर्सनालिटी इम्प्रूव हुई थी, इनसाइड द कैंपस एंड आउटसाइड द कैंपस। तो काफी सर दिल्ली इज अ डेवलप ग्रेट हुआ। इंस्टीट्यूट। आईटी हाँ, दिल्ली। लाइब्रेरी काफी अच्छी थी, मेस काफी अच्छा था, तो हमें काफी अच्छा एक्सपीरियंस था सर वहाँ पे। सबका इम्प्रूव हुआ था स्कोर And वहाँ पे। Professor Deshmukh was my teacher. He was industrial engineering. He was my यस teacher. सर, यस सर, He was director काफी of अच्छे that थे। time. Triple IT के director थे उस time. But यस सर, I think he has come back and he's joined another department. I don't know. हाँ So सर, that is देशमुख सर काफी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देते थे, मतलब उनका ये फोकस नहीं होता तो तुम कितने मार्क्स ला रहे हो, रियल लाइफ प्रॉब्लम देते थे, जाओ सही सॉल्व करके आओ कि इस कंपनी ने कैसे इंप्रूव किया, इस कंपनी ने कैसे अपना सप्लाई चेन बढ़ाया। केस तो स्टडी उनकी देते हैं। रिपोर्ट पढ़ के आओ, केस स्टडीज करो और उसको पीपीटी बना के मुझे सेंड करो। सही। काफी सपोर्टिव थे सर। Yeah. So Chandan, I think now we come to an end of this wonderful session. बहुत अच्छा सेशन रहा चंदन, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा स्टूडेंट्स को, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। And we wish you all the very best for your research career, ISRO, and you should become a great scientist of Yes ISRO. sir, thank you sir, thank you so much sir, your PDA team and all, and they are very helpful throughout my journey sir, like in mock interview and all, they are always help there, and Nikta ma'am and all, they are scheduled such that we will never miss a mock interview sir. This is the domain where there is a lot of scope of improvement. जैसे बच्चों को इंटरव्यू की तैयारी करना, अभी भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि प्रिपरेशन करनी कैसे है, तो ऑब्वियसली जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है ना, वो उनको हेल्प करेगा। हाँ सर, मुझे लग गया था कि मुझे लग गया था कि मेरे रिटन एग्जाम तो सर क्लियर हो रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में कहीं ना कहीं मैं चूक रहा हूँ, तो उस पर मैंने सर काफी फोकस किया इस बार, कि बोल के उनको प्रैक्टिस किया था काफी, और आपके भी काफी मार्क्स देखे थे, और बच्चों के मार्क्स में सुन रहा था, क्योंकि सर जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे ना वही आप लोग पूछते थे, और वहीं पे हम लोग फंस जाते थे, तो उनको फिर देखते थे, बुक्स में देखते थे, सर्च करते थे, फिर अगेन दोस क्वेश्चन विल कम एंड अगेन विल आंसर वेरी फ्लुएंटली एंड ऑल। तो कॉन्फिडेंस सर गेन होता था अंदर से कि वहां जाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम उसको आंसर कर देंगे, इस लेवल तक हम पहुंच जाते थे वहां। चलो चंदन, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट for your research career forward, and thanks a lot for your this time today.